أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت چ رہن انہاں دی خدمت کرن انہاں نال پیار کرن انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرن انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن یہ توفیق عطا فرمائے. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب و نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے خاتمہ بالایمان فرمائے. عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے. قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں اور فضیلتاں نے. قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 55ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا. اس آیت پاک در حقیقت ہے سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے. تے اللہ سونے نے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں. اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو. اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے عمل دے بارے دسیا اور درود پاک دی شان دا ذکر کیتا اور یہ برکت دا ذکر در حقیقت دسیا کہ میں کیڑا عمل کر رہا. اللہ سونے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برساوندا رہنا اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا. میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے نے. اس آیت پاک جی سلون دا سیگا ہمیشگی دا دلالت کردا سلو صلوات صلوات دا معنی دعا کرنا. جدی دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انوار رحمت برساونا. جدی دی نسبت فرشتیاں اور مومنہ طرف ہوئی گی اس تو مراد دعائے رحمت کرنا اللہ دی بارگاہ کہ اللہ سونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود و سلام انوار رحمت ہمیشہ برساوندا رہے. تو جو کہ خاص نعمت ہے اس واسطے اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اپنے سچے عاشقاں نوں بلایا دسیا ساریاں نوں کہ میں یہ عمل کردا ہے تو بلایا صرف اپنے سچے عاشقاں نوں. اپنے دشمناں نہیں بلایا اللہ سونے نے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, ईमान वाले किहड़े ने? सोहणे रब ने दस्सिया ईमान वाले किहड़े लोग ने। सूरा बकरा दी 165वीं आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जेहड़े रब सोहणे ना जिन्हों ने इश्क करदे ने। ते कुरान हकीम दी रब सोहणे दस्सिया अरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपनी सोहनी प्यारी ज़ुबान चो अपने और अपने मेरे आशिकां नूं ईमान वाले ने गल दस दिओ कि अगर तुहानूं नेमत ईमान मिल गई है, रूह ईमान यानी जुनूनी इश्क मौला अशद्दु मुबालगे दा सीगा, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी नेमत मिल गई है, नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तुहानूं हासिल होगी। मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबिक करो, मेरे नक्शे कदम ते चलो, मेरी हर हर सुन्नत ते अमल करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सुनो तुहाडे नाल इश्क करेगा। पहले तुसीं अल्लाह नाल इश्क करदे, हुण अल्लाह सुनो तुहाडे नाल इश्क करेगा। दो तरफ इश्क दी गल ही कुछ होर है। जिहनूं नेमत हासिल उहनूं पता है। इस कैफियत का बयान करना कमा हक बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्फाज कलम कागज ये चीज़ है मुतहम्मल ही नहीं है इस कैफियत लिखण दे। ते सुने रब ने अपने सच्चे अपने हबीब के सच्चे आशिकां नूं बुलाया कि मैं ला शरीक ज़ात हाँ, आओ मेरे नाल शरीक हो जाओ इस कम च कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूब दरूद भेजते रहा करो। और मजीद तुहानूं इनाम ये भी है, हुक्म ये भी है वसल्लिमू तस्लीमा, खूब सलाम भी भेजते रहा करो। हजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाँ फरमांदे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। ते दुरूद सलाम वो अजीम शान विरद वजीफ़ा दुआ इबादत अक्सरी आज़म नुस्खा कीमिया आब हयात इसमें आज़म और खजाना आ जो सिर्फ खासा दिता जाता। इस वास्ते थोड़े रब ने खासा बुला के गल कही। तो दुरूद पाक दुनिया का वाद वजीफा जो कबूल है कबूली कोई शक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पाक जो लवे सुने उत्ते एक बारी दुरूद पढ़ना वाजिब है। तो दुरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। तो अल्लाह सुनते हाँ दुरूद पाक कोई काबिल कबूल है जिहदे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले पाक का जिक्र होवे। तो दुरूद पाक दियां फजीलतां बरकतां बेशुमार सच्चे उलमा मुशाइख ने दसियां, हदीसां चाहिए, हदीस मुबारक के अंदर बेशुमार फजाइल आए हैं जिन्हों का मुख्तसर खुलासा है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्हें मेरे ते कई दुरूद पाक पढ़े अल्लाह सुना वो 10 रहमत नाज़िल फरमांदा, वो 10 दर्जे बुलंद करदा, वो नामा माल च 10 नेकियां लिखदा, 10 गुनाह मिटाउंदा। ते कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले ने दुरूद पाक क़यामत दे दिन पुल सरात तो सनी ना गुजार देगा, हौज़े कौसर ते ले जाके जामे कौसर पलवाएगा और उन्होंने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होएगी, आप दी कदम बोसी दस्तबोसी की साद नसीब होएगी, आप दी सोबत नसीब होएगी, आप दी ज़ियारत नसीब होएगी, आप दे मोढ़े नाल मोढ़ा छूएगा। और कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हशर दे दिन हीरे जवाहरात दा जिहड़ा नूरी जन्नत दा ताज पहनाया जाएगा ताकि दूजियां नाल मुमताज़ हो जाए। दुरूद सलाम पढ़ने वाले दे तमाम कम्मां दा मामलात दा ज़रूरियात दी जिम्मेदारी अल्लाह रसूल चुक लैंदे ने। तमाम नफली इबादत तो अफजल वजीफा दुरूद सलाम है और सब तो पसंदीदा वजीफा अल्लाह सुने दा दुरूद सलाम अल्लाह रसूल दा पसंदीदा वजीफा। दुरूद सलाम कसरत पढ़ने वाले नूं उशाकाने मौला दी औलिया अल्लाह दी जमात लिख लिता जाता और इश्क नगर च दाखिल कर दिता जाता जिथे जाने का कोई दरवाज़ा वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं।
और दरूदो सलाम पढ़ के जिन्होंने बख्शिया जाए मेरा मौला दी बख्शिश फरमांदा। दरूदो सलाम पढ़ने वाले नूं हशर दे दिन अर्श दे साए थले बिठाया जाएगा, जिस दिन सिर्फ और सिर्फ अर्श दा साया होएगा। दरूदो सलाम पढ़ने वाले दे 3 दिन तक फरिश्ता गुनाह नहीं लिखता, उन्होंने जन्नत च कसरत नाल हूरां दित्तियां जाणगियां। उन्होंने मरण तो पहले जन्नत दा मुकाम दिखाता जाएगा, महल दिखाता जाएगा, वो जन्नत को वसी करता जाएगा। दरूद सलाम अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह च इस्तगफार करदा। दरूद सलाम पढ़ने वाले जिहड़ा बंदा जदों मरेगा कब्र की मिट्टी वो जिस्म और कफन को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बकौले शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हशर नूं दोज़ख तो बिरात दा जन्नत दाखिल दा परवाना अता किया जाएगा, तो मत्थे ते लिख दिता जाएगा शख्स नफाक तो बरी है। दरूद सलाम पढ़ने वाले उत्ते शिफात जिहड़ी वाजिब हो जाती है। दरूद सलाम पढ़ने वाले का पल्ला हशर के दिन नेकियां दा पारा होगा, अल्लाह पर के नेकियां उहदे नामे अमाल च पाईयां जाणगियां। दरूद सलाम वो वाहद कारोबार है जिस नफा ही नफा घाटे का तसव्वुर ही है नहीं। दरूद सलाम पढ़ने वाले को अल्लाह रसूल का खास कुर्ब अता किया जाता, हमेशा दुश्मनों ते गलबा अता किया जाता। हर कोई दुश्मन दरूद सलाम पढ़ने वाले ते गालिब नहीं आ सकता। बड़े बड़े जाबर उहदे अगे गर्दनां झुका दिंदे ने। ते सच्चे आशिक दा दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते, आमा दा दरूद फरिश्ते लैके जाते हैं। आम दरूद सलाम पढ़ने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब च ज़ियारत कराते रहते हैं, खासा मुराकबे के अंदर ज़ियारत कराते रहते हैं, और खासुल खासा खुलियां अखां अपनी ज़ियारत कराते रहते हैं। दरूद सलाम पढ़ने वाले दे फरिश्ते हमेशा हिफाजत फरमाते रहते हैं। दरूद सलाम नात दी महफिलों के फरिश्ते आ घेर लेंदे आ और उन्होंने रल के दरूद पढ़ते हैं, और चांदी के जन्नती नूरी कागज़ों उत्ते सोने के नूरी कलमां नाल दरूद सलाम लिखते हैं, और उन्होंने अल्लाह रसूल की बारगाह ले जाके पेश कर दे कि अल्लाह फलां फलां ने तुहाडे ते दरूद सलाम पढ़िया। वैसे तो अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती तो वाकफ़ है, आप कायनात की हर शान मुलाजा फरमा रहे। आप मुख्तार ने जिंदा आया तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आपने अल्लाह सोने मुख्तार कुल बनाया, क्योंकि आप अल्लाह सोने के आशिक है। आपने हर शाह अपने अल्लाह के कुर्बान करती, अल्लाह सोना आप दा आशिक है, तो अल्लाह सोने ने आप ते हर शाह को कुर्बान करता, और तमाम खजाने चाबियाँ आपको ता फरमाती हैं। आपको कासम बनाता, सोना जिन्हें जो चाहे ता फरमा, जिन्हें जो नेमत मिलती है वो आप दे हथों मिलती है। जन्नत भी कल नूं आपने ही तकसीम करनी है हशर में। दरूद सलाम पढ़ने वालियां नूं कसरत नाल हूरां दित्तियां जांदियां ने, और दरूद सलाम दी बरकतां इंसान की जान माल औलाद के अंदर रवां दवां हो जांदियां ने। और दरूद सलाम पढ़ने वालियां जिहड़े मिलने वाले आ उन्होंने उस पड़ोस वाले उन्होंने भी बरकतां मिलदियां, उत्थों भी आफात तो बरियात नूं भजा दित्ता जांदा, जुल्माती लहरां जला दित्तियां जांदियां, उन्हें तवज्जुहात नाल फज़ावां नूं इलाके दीयां चीज़ां नूं स्कैन करता जांदा, क्योंकि कोई जगह औलिया अल्लाह तो खाली नहीं, और सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नाल ही अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। कसरत दरूद सलाम पढ़ना सच्चा सुनी होने की अलामत है।
हदीस पाक दे अंदर है, शफा शरीफ कौले बदी और कशर गुम्मा के अंदर हदीस पाक लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर के कुछ गरोह वारद होणगे जिन्होंने मैं उन्होंने दरूद पाक की कसरत की वजह पहचानता होवांगा। दलाल खुरैत दे अंदर हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ते दरूद पढ़ने वाले नूं पुल सरात दे उत्ते ज़िम शान नूर अता किया जाएगा और जिन्हों पुल सरात ते नूर अता होया वो हाले दोज़ख विचों नहीं होएगा। कौले बदी दे अंदर हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ लोगों बेशक तुहाडे विचों क़यामत दे दिन क़यामत दे होलां और के उहदी दुश्वार घाटियां तो जल्द अज जल्द निजात पाउण वाला शख्स होएगा जिन्हें दुनिया विच मेरे उत्ते कसरत नाल दरूद पढ़िया होएगा। सादत दारैन दे अंदर वाक़या लिखिया सरात दारैन दे अंदर लिखिया है कि सैयदना अबू अब्बास तिजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जदों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ना हर खैर दी चाबी है, ग़ैब व मारिफ दी चाबी है, अनवार व असरार दी चाबी है, ते जिहड़ा शख्स इस तो अलग हो गया कट गया और दुतकारिया गया उन्होंने अल्लाह सोहणे दे कुरब तो कुछ भी हिस्सा नहीं मिलना। आपने अपने मुरीद नूं एक खत लिखिया उहदे विच आपने लिखिया कि अल्लाह सोहणे दे जिक्र तो जिक्र विचों वो जिक्र सब तो बहुत बड़ा फायदे वाला है जिहदा फल बड़ा मिठा है जिहदा अंजाम शानदार है, वो है अल्लाह जल्ला शानहू दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़ना हजूर कल्ब दे नाल, क्योंकि दरूद पाक दुनिया आखिर दी हर खैर नूं खिच्चण वाला है, हर शर नूं दफा करन वाला है, ते जिहने नुस्खा इस्तेमाल कर लिया वो अल्लाह दे बड़े बड़े औलिया अल्लाह दी जमात च दाखिल हो जाएगा। आप सरसम शान पाक बहुत बुलंद है, अल्लाह सोहना जानदा ये आप जानते हैं। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शानो मुकामो अजमत की गर्दे राह भी नहीं पा सकता। तज़किरा मशाइख नक्शबंद के अंदर लिखिया कि सुल्तान लारिफीन हजरत बाई दी बसामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि जिथे मोमना के मुकाम की इंतहा हुंदी आ उथों औलिया अल्लाह के मुकाम की इब्तदा हुंदी आ, ते जिथे औलिया अल्लाह के मुकाम की इंतहा हुंदी आ उथों शुहदा के मुकाम की इब्तदा हुंदी आ, जिथे शुहदा के मुकाम की इंतहा हुंदी आ उथों सद्दीकीन के मुकाम की इब्तदा हुंदी आ, ते जिथे सदीकीन दे मुकाम की इंतहा हुंदी है उतो नबियां दे मुकाम की इब्तदा हुंदी है, ते जिथे नबियां दे मुकाम की इंतहा हुंदी है उतो रसूलों के मुकाम की इब्तदा हुंदी है, ते जिथे रसूलों के मुकाम की इंतहा हुंदी है उतों उलुल अज़म रसूलों के मुकाम की इब्तदा हुंदी है, ते जिथे उलुल अज़म रसूलों के मुकाम की इंतहा हुंदी है उतों हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम की इब्तदा हुंदी है, ते हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानो मुकाम की इंतहा नूं अल्लाह सोहना जानदा है। कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने, ताज़ीम जिसने की मोहम्मद के नाम की अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। मौत दे वेले निज़ा दे वेले आसानी ना ओदी रूह निकलेगी एवें जिवें मक्खण चों वाल निकल जांदा, उहनूं पता भी नहीं लगना। इहदियां बरकतां इन्नियां बल्कि कब्र विच भी उहनूं कोई तकलीफ नहीं होनी। जिवें हज़ूर मियां मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले किड्डी सोहणी गल कीती। आप फरमाले कि लोकां मैनूं आण डराया रात कब्र दी काली, ते मैं सुनिया उत्थे ओहने आउणा जिहदे मोढे कंबली काली।
सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। आप फरमाते सानू कोई गम नहीं, सारी जिंदगी आपदी मुहब्बत और इताअत च गुजारी है ते सारी जिंदगी सानू मेरे अल्लाह ने नवाज़िया। नबी पाक साडी हर मैदान च मदद की है। जिवें हदीसां जाके दुरूद सलाम पढ़ने वाले दे कदे कोई दुश्मन गालिब नहीं आ सकता, बल्कि दुरूद सलाम पढ़ने वाला हर दुश्मन दे गालिब रहेगा। ते हशर नूं आप दी शफाअत भी की जाएगी दुरूद सलाम पढ़ने वालियां। जिवें हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने कितनी सोहनी गल की कि नाल शफाअत सरवरे आलम छोटू सी आलम सारा हो कि हशर नूं जिसदा नफ्सो नफसी दा आलम होना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप बेटे तो नहीं पूछेगा, बेटा बाप को नहीं पूछेगा, मां तियां नूं, तियां मां नूं, दोस्त दोस्त नूं, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी उम्मतां नूं जवाब देणगे। अज लोआए हमद सिर्फ और सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल है। सारे इकट्ठे हो गए आप दी बारगाह जाओगे ते आप शफाअत फरमाओगे सब दी। दुरूद सलाम पढ़ने वाले दी फरिश्ते हमेशा हिफाजत करते हैं, जिथे किते भी है फरिश्ते उहदी हर वेले इर्द गिर्द उहदी हिफाजत फरमाउंदे रहंदे आ, तां कोई शैतानी कुव्वत उते हमलावर ना हो सके, कोई दुश्मन उते गालिब ना आ सके। ते दुरूद सलाम दियां नातां दियां महफिलां सजाउण वाले भी फरिश्ते आ घेर लैंदे आ, उन्हां नूं रल के दरूद पढ़दे आ। और जन्नत दे चांदी दे कागज़ां उत्ते जन्नत दे सोने दे कलमां नाल वो दरूद पाक लिखदे ने, लिख के अल्लाह रसूल दी बारगाह च पेश करदे ने। ते सच्चे आशिकां दा दरूद अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनदे ने बराह रास्त। और आमा दा दरूद पाक फरिश्ते लैके जाते इसलिए कि आम आदमी के अंदर नैगेटिव मनफी जुलमाती गैर मरी लतीफ एनर्जियां होंदियां जिहदे नाल दरूद दा नूर लुथड़ जाता है। तो फरिश्ते उस गंदियां बदबूदार मुताफन लहरां नूं अलग करके खालस दरूद नूं अल्लाह रसूल दी बारगाह च लैके जाते हैं। ते दरूद सलाम पढ़ने वाले आमा नूं ख्वाब दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत कराउंदे रहंदे आ, खासा नूं मुराकबे अंदर ज़ियारत कराउंदे रहंदे, खासुल खासा नूं खुली अखां नाल ज़ियारत कराउंदे रहंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। दरूद पाक अगे बड़े बड़े जालिम जिहड़े आगे सिर झुका लैंदे ने और उन्हां दे हमलावर जिहड़े खुद नाकाम हो जांदे ने। ते दरूद सलाम पढ़ने वाले जिन्ने भी लोग है सच्चे वो दुनिया दे जदों मरदे आ ते कब्र विच भी कब्र दी मिट्टी उन्हां दे जिस्म दा दरकनार उन्हां दे कफन नूं भी नुकसान नहीं पहुंचा सकदी। बकौले शायर कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस बारगाह के अंदर बेशुमार फजीलतां बरकतां लिखी हैं। कौले बदी के अंदर हदीस पाक है किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज की कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण, जनाब ये इरशाद फरमाओ कि अगर तुहाडी ज़ात दे उत्ते दुरूद पाक ही मैं वजीफा बना लवां ते किदां दा रहेगा। ये नहीं कहण लगे कि मैं अगर सारे वजीफे छड्ड के सिर्फ दरूद सलाम ही पढ़दा रवां। वो कहना है चाह रहे सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू इदां करेगा तो फिर याद रख अल्लाह सोना दुनिया आखिरत तेरे सारे मामले वास्ते काफ़ी है। इन्हें समझ ला तेरे सारे मसले फिर हल है इस दुनिया दे भी, कब्र दे भी, आखिरत दे भी। मिशकात शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि मैं नमाज पढ़ी हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा सी उत्थे। जब मैं नमाज पढ़ के बैठे तो अल्लाह सोहणे दी हम्दो सना की, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़िया। पढ़ के जब मैं दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जो कहने लगे
ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ। ਜਾਮਿਆ ਸਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਉਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਪੜੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਉਮਤੀ ਨੂੰ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖੇਗਾ ਔਰ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਏਗਾ ਔਰ 10 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਸਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏਗਾ।